Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and we are doing this CAT 2021 Slot 1 DILR. Data interpretation logical reasoning is very important part because it involves varieties of the thinking. Yes or no? बहुत सारी चीजें लॉजिकली एक साथ कनेक्ट करके अप्लाई करनी पड़ती है ताकि आपके सामने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको. ठीक है, बिकॉज एज अ मैनेजर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ यू कैन से वेरिएबल्स. With so many variables giving so many different consequences, it becomes very important, ठीक है, for a manager to be very careful to think critically. Okay, so as a manager we are going to think in a very critical way and we are solving this set. So दोस्तों ProTalent is bringing this regular videos for you just for your development. दोस्तों ये सब videos आपको YouTube पे मिल रहे हैं because you can definitely learn all these concepts wherever you are sitting. At any point in time you want to learn it, you can get it. Okay, so ProTalentDigital.com provides you previous year के question paper with all detailed solution there in a PDF format or even in a testing format that is available. In addition to that, we also provide you can say topic wise practice questions free of cost on ProTalentDigital.com. So don't miss out to be part of ProTalentDigital.com and don't miss out to like this channel, subscribe our channel, like this video and move forward. Okay, so this is slot 1 and this is possibly the last set available you can say to solve. This is very interesting set, question number 15 to 20, 6 questions and this is one of the longest one. ठीक है, but I believe it is reasonably manageable for all of us to you can say solve. ठीक है, so first thing first, when you are solving question, ठीक है, with a confidence in mind, with a belief in mind that you will be in a position to solve it. ठीक है, don't jump to a question with lot of doubt in your mind कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, ऐसा मत करना. So we read all these instructions carefully and we try and move forward. So there is a journal which plans to publish 18 research paper, okay, written by 8 authors, A, B, C, D, E, F, G, H, which is easy, in 4 issues of journal scheduled in January, April, July, October. Each of the research paper was written by exactly one of the 8 authors. Okay, each of the research paper is written by only one author. ठीक है, and there are how many authors are there? 8 authors. ठीक है, okay, so each research paper was written by exactly one of the 8 author. So the research paper and the author are one-on-one connected. Great. The 5 papers are scheduled in each of the first 2 issues. Okay, so there are 4 issues of journal. ठीक है, उनमें से पहले 2 में ठीक है 5 papers है. Okay, ठीक है, while the 4 were scheduled in each of the last you can say 2 issues. So total 18 research papers are there. 18 रिसर्च पेपर्स आर देयर. उनमें से पहले 2 में आपके पास 5 मतलब 10 आ गए और बाकी में यू कैन से 4, दैट इज 4 + 4 8, दैट इज कंफर्टेबल. एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट 1 पेपर एंड एट द मोस्ट 3 पेपर. हर एक बंदे ने मिनिमम 1 पेपर तो लिखा ही होगा. ठीक है, और एट द मोस्ट 3 पेपर. ओके, ठीक है, टोटल 8 ऑथर्स है और 18 पेपर लिखना है. यस और नो? सो इतना तो पक्का है कि देयर विल बी सम पीपल हु माइट हैव रिटन मोर देन 1 पेपर. Okay, ठीक है, the total number of paper written by ADGH was double the total number of paper written by the other 4. ठीक है, तो भैया टोटल पेपर जो 4 लोगों ने लिखा, लेट अस अज्यूम है ना, ये 4 लोग और बाकी 4 लोग, ये 4 लोगों ने अगर यू कैन से टोटल पेपर x लिखा है तो इन लोगों ने टोटल पेपर 2x लिखा है. Yes or no? So 2x + x is equal to 18. This is easy. Yes or no? So that means इन लोगों ने 6 पेपर लिखे हैं और इन लोगों ने 12 पेपर लिखे हैं. किन्होंने 12 पेपर लिखे हैं? ADGH ने. कितने पेपर लिखे उन्होंने? 12. और बाकी लोगों ने 6 पेपर लिखे, which is comfortable for us. Great. 4 of the authors were from India, 2 from Japan and China. Okay, 2 each, मतलब 4 इंडिया से है, 2 जापान, 2 चाइना, हो गए टोटल 8 लोग. Okay, each author belonged to exactly one of the 3 area: manufacturing, automation, logistics. 4 of the authors were from logistics area, 2 were from automation area. ठीक है, as per the journal policy, none of the author could have more than 1 paper in any issue of the journal. ठीक है, and then the following facts are known. Now my suggestion, ठीक है, to all of you,
is once you got this data, ठीक है, this gives you background that what are the parameters and how these parameters are interrelated. So which are the parameter? There are 8 people, there are 18 papers, there are 3 countries, there are 3 specialization area, there are 4 months, ठीक है, in the paper which is coming. So these are the conditions, these are the parameters. So let us first put those parameters in context, in perspective. Okay, then we come back to read this. If you don't put all this in perspective, you read further, it doesn't help you at all. Yes or no? दी बेस्ट वे, अगर आपको बेस्ट वे करना है तो आपको ये जो भी डेटा है उसको एक पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा. ये सर नो. चलिए ग्रेट. सो मेरे पास कौन कौन है? मेरे पास ऑथर है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच, इतने ऑथर है. ये सर नो. व्हेन आर दे पब्लिशिंग? दे आर पब्लिशिंग, ठीक है, इन द मंथ ऑफ, ठीक है, कब कब? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में पब्लिश कर रहे हैं. ये सर नो. सो जनवरी, मैं भूल गया क्या लिखा था. ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये उनके मंथ हो गए. ये सर नो. मैं काफ़ी बड़ी बड़ी जगह लेके चला, मुझे छोटा छोटा करना पड़ेगा, बट आई विल मैनेज इन द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. ओके, सो ये मंथ है उनके. उसके बाद क्या दिया है? देर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द कंट्रीज. ओके, कौन सी कंट्री है भैया? इंडिया, जापान, चाइना. ठीक है, ये उनकी कंट्रीज हैं. ओके, ठीक है. एंड देयर आर 3 एरियाज: मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स. मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स. सही बात है. नाउ सर्टन थिंग्स विच आई नो, है ना, मैं उसको यहाँ पे डालता जाऊंगा. ये सब करना पड़ता है भाई, मेहनत, है ना. उसके बगैर तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, है ना. 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इतना डेटा है. सो यू मे टेक 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, है ना, विच इज़ प्रीटी गुड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इन्होंने कहा कि जनवरी और अप्रैल में, ठीक है, 5-5 पेपर लिखे गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 5 पेपर है, इसमें 5 पेपर है, 5 + 5 10, और इसमें 4 और 4 ये पेपर लिखे गए हैं. ये सुनो. जापान से कितने, सॉरी, इंडिया से कितने ऑथर है? 4, जापान से 2 और चाइना से 2. चलो ये बराबर है ना. अब मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन के बारे में क्या बोला है? 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम लॉजिस्टिक, 2 फ्रॉम ऑटोमेशन. ठीक है. ओके, सो दैट इज प्रीटी गुड. ओके, सो 4 फ्रॉम लॉजिस्टिक, 2 फ्रॉम ऑटोमेशन एंड 2 फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये हमें डेटा पता है. Now one more information they provided, that as per journal policy, none of the author could have more than 1 paper in any issue of the journal. ठीक है, कोई भी जर्नल में उनका, ठीक है, 1 से ज़्यादा पब्लिश नहीं होगा. मतलब अगर ए जनवरी में पब्लिश करता तो एक ही पेपर पब्लिश कर पाएगा. ये सर नो. बात समझ में आई? ग्रेट. ठीक है, चलो ये समझ में आया. अच्छा, इसके अलावा वी ऑलरेडी नो वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉल्ड ADGH. ADGH टोटल 12 पेपर पब्लिश करते हैं. ये सुनो. तो फिर बचा क्या? B, C, E, F, ये लोग 6 पेपर पब्लिश करते हैं. ये सुनो. दैट इंफॉर्मेशन इज नोन टू अस. अब मैंने ये पूरा डेटा यहाँ पे लिख दिया. आई गॉट दिस कंफर्टेबल फ्रंट इन माई माइंड. मेरे दिमाग में बैठा है कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से होगा. मैंने ऊपर भी डेटा दे दिया है, तो मेरे लिए कहानी अब ईजी है. ओके, चलिए ग्रेट. अब मैं ये रूल अप्लाई करूंगा. F is an Indian author from logistic area, wrote only 1 paper and it was scheduled in October. Very good. F is in October, उन्होंने एक ही पेपर लिखा है, तो बाकी सब कैंसिल हो गया. He is from India, तो बाकी कैंसिल हो गया. He wrote it in logistic part, तो ये कैंसिल हो गया. सही है. रिपीट करता हूं मैं वापस.
F is an Indian author, logistic area, wrote only one paper and it was scheduled in October issue. ठीक है, F is from India, अक्टूबर में लिखा, only one paper and is from logistic area. Perfect है. Second, A was from automation, did not have a paper scheduled in October issue. A क्योंकि ऑटोमेशन से है, A ऑटोमेशन से है तो बाकी से नहीं होगा. ठीक है, अक्टूबर में उसका पेपर शेड्यूल्ड नहीं है. ओके, अक्टूबर में ये नहीं है. अब आप देख सकते हैं एफ ने अगर एक ही पेपर लिखा है तो बी सी ई का मिला के 5 पेपर बनने चाहिए. ये सुनो, अब आप देख सकते हैं ये 4 लोग हैं, है ना, 4 लोगों का 12 है तो इतना पक्का है कि सबका 3-3 होगा, है ना. सबने 3-3 पेपर लिखा होगा तभी तो 4 गुना 3 12 होगा, नहीं तो कैसे होगा. मैथमेटिकल नंबर तो वही बोलता है. ये 12 है, ADGH टोटल 12 है, 4 लोग 12 करते हैं. ठीक है, उसमें से ए का एक क्रॉस कर दिया है और कंडीशन भी है कोई भी ऑथर 3 से ज़्यादा करता नहीं है तो इसका ये तीनों 3 पक्का है. सही है ना, ग्रेट, चलो बढ़िया, ठीक है. सो हमने पहला इंफॉर्मेशन ले लिया, दूसरा ले लिया. नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया and none of the Japanese or Chinese author were from automation area. ठीक है, so manufacturing में no India and automation में no China or Japan. So anyone who is from, you can say India will take it from, you can say automation. ऐसा होगा, सही बात है. None of the Indian author were from manufacturing. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग चाहिए हमें? मैन्युफैक्चरिंग में हमें चाहिए 2 लोग, तो एक भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है. ठीक है, फिर एक भी चाइनीज और जापानीज ऑटोमेशन में से नहीं है. बिल्कुल सही बात है, दैट इज व्हाट वी रोट. ग्रेट, ठीक है. सो ए इज फ्रॉम ऑटोमेशन. सो अगर वो ऑटोमेशन में है तो वो चाइना और जापान से नहीं है, तो ये पक्का इंडिया से है. सही बात है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट. ठीक है, ओके. नाउ सो वी अप्लाइड थर्ड इंफॉर्मेशन. ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बट हैड देयर पेपर शेड्यूल्ड इन एग्जैक्टली सेम इश्यूज. सो दोनों अलग अलग कंट्री से हैं. ग्रेट, तो एच और दोनों के शेड्यूल सेम है तो ये 3 पेपर करेगा. ये दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये सनो. सो देयरफॉर ये पक्का इंडिया से नहीं है क्योंकि ए तो इंडिया से है तो ये इंडिया से नहीं है. ये जापान या चाइना से होगा, किसी से होगा. अगर जापान चाइना से होगा तो ये ऑटोमेशन में तो पक्का ही नहीं होगा, ये तो हमें पता है. वेरी गुड, ठीक है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग वन. सो वी हैव अप्लाइड, यू कैन से दिस इंफॉर्मेशन. सही है, ग्रेट. सी एंड ई, ओके, जस्ट अ मिनट, मेरे दिमाग में एक और विचार आया. एच क्या, ADGH में आ गया एच. ये सुनो, ADGH में एच आ चुका है, कोई पंगा नहीं है. ग्रेट, है ना. मेरे दिमाग में ऐसा था कि एच शायद यहाँ BCEF में हो तो हमारा एक और डेटा मिल जाता, पर नहीं. वापस, सी एंड ई आर बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया. चलिए पहले वो लिख देता हूँ मैं. सी और ई दोनों चाइनीज है. सी कहाँ से, चाइना से है. ई कहाँ से, चाइना से है. तो यहाँ से कोई नहीं होगा, यहाँ से कोई नहीं होगा. ये सुनो, ठीक है. तो चाइना में 2 लोग कंप्लीट हो गए तो इस सबको मैं पूरा कैंसिल कर देता हूँ. सो दैट गिव्स मी अ क्लैरिटी. ये सुनो, जो चाइना से है वो लोग ऑटोमेशन से नहीं होंगे तो ये भी ओ मैंने गलती कर दी, मैन्युफैक्चरिंग को क्रॉस कर दिया. ये सुनो, ये मैं इंडिया को क्रॉस करूँगा. चाइना से हैं तो जापान से नहीं हो सकते, इंडिया से नहीं हो सकते, और ये लोग ऑटोमेशन में नहीं होंगे. कंफर्टेबल है, वेरी गुड. फिर क्या बोला, सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड. सी और ई के सेम नंबर ऑफ पेपर है. ग्रेट. फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज ऑफ जर्नल बट सी डिड नॉट. ई के कंसेक्यूटिव जर्नल है, ठीक है, सॉरी, ई का कंसेक्यूटिव है और सी का नहीं है. अब दोनों का सेम नंबर है. ये सुनो, अब देखिए BCEF में है, सेम नंबर बोला, कंसेक्यूटिव बोला. सो इतना पक्का है कि यहाँ पे इन दोनों का क्या हो सकता है, ठीक है ना. एक का कंसेक्यूटिव है, एक का नहीं है, सेम नंबर है. सो सेम नंबर होने के लिए क्या हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं. सी और ई का 2 हो सकता है, बराबर है. और यू कैन से ई का कंसेक्यूटिव है, सी का नहीं है. ओके,
चलो ग्रेट, कंसेक्यूटिव है, कब कर सकता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, पता नहीं है मुझे, पर इसके 2 हैं और इसके 2 हैं, ये पक्का है, और बी का एक ही है, ओके, ये पक्का हो चुका है मेरे सामने. सो लेट्स सी व्हाट आर दोस. आई डोंट नो व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ दिस, बट स्टिल आई विल कीप इट विथ मी, है ना, ये मेरा बाकी है इंफॉर्मेशन को यूज करना. बी इज फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया बट हैड अ पेपर शेड्यूल्ड इन अप्रैल इश्यू ऑफ द जर्नल. बी क्योंकि लॉजिस्टिक एरिया से है, बी लॉजिस्टिक से है और उसका पेपर शेड्यूल्ड है, ठीक है, कौन से महीने में, ही सेज इट इज फ्रॉम अप्रैल इश्यू, ओके, सो इज फ्रॉम अप्रैल, वो अप्रैल में करता है, ये अप्रैल है, तो ये गया, उसका तो एक ही है ना, तो ये गया, इसका लॉजिस्टिक है उसका, बराबर है, ठीक है. इंडिया वाला बंदा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ये सर नो, इंडिया का बंदा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो अब या तो वो जापान हो सकता है, ठीक है, या तो इंडिया हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है, सो वी डोंट नो वो कहाँ से है, ठीक है. लॉजिस्टिक के अंदर 4 है, ऑटोमेशन में 2 है, ऑटोमेशन का 1 आया है, वी डोंट नो, मैन्युफैक्चरिंग के 2, वी डोंट नो दैट, सो वी आर नॉट अवेयर, ओके, ठीक है, चलो कोई पता नहीं है. सो वी डोंट नो अबाउट बी कौन सी कंट्री से है, ठीक है, इसका भी पूरी इंफॉर्मेशन हमने अप्लाई नहीं करी है, ठीक है. बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, ओके, एंड नन ऑफ देयर पेपर वर शेड्यूल्ड इन द सेम इश्यू ऑफ जर्नल. बी और जी दोनों सेम कंट्री से है, ओके, बी और जी दोनों सेम कंट्री से हैं, सो दोनों या तो जापान से हो सकते हैं, ठीक है, ओके, दोनों या तो जापान से हो सकते हैं या तो दोनों इंडिया से हो सकते हैं, ठीक है, ओके, चलो वी डोंट नो स्टिल, बराबर है. सो बी एंड जी एंड नन ऑफ देयर पेपर वर शेड्यूल्ड इन द सेम इश्यू. ओ, तो जी की जानकारी मुझे मिल गई है ना, क्यों मिल गई है ये देखो, बी एक ही पेपर पब्लिश करता है, जी क्योंकि 3 पेपर पब्लिश करता है और वो इस दिन तो करेगा नहीं अप्रैल को, ठीक है, तो ये करेगा, ये नहीं, ये और ये करेगा, सही बात है, पक्का, चलो बढ़िया, ठीक है. देखो भैया, इसके 4 होने चाहिए थे, अभी 2 ही हो रहे हैं, इसके जुलाई के भी 4 होने चाहिए, 3 हो चुके हैं, विच इज गुड, ठीक है. अप्रैल के 3 हो चुके हैं, 5 चाहिए हमें, जनवरी के 3 हो चुके हैं, 5 चाहिए, ठीक है, ओके. कंट्री कौन सी है, वी डोंट नो फॉर बी एन जी, ठीक है. सो बी एन जी का कंट्री क्या बचा है, इंडिया और जापान, इंडिया और जापान, इंडिया और जापान, ठीक है. डी इज ए जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ओके, डी जापानीज है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ओके, ग्रेट. डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन जुलाई मंथ, उसका जुलाई में पेपर नहीं है, तो जुलाई में उसका पेपर नहीं है. डी क्योंकि इस ग्रुप का मेंबर है तो उसको 3 पेपर लिखने पड़ेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है, चलो अच्छी बात है. सो वी गॉट अबाउट डी, ओके. कितने 5 हुए, कहीं पे 4 हो गए क्या, नहीं, पूरे कहीं पे भी हुए नहीं है, ठीक है. सो वी नो अबाउट डी, डी इज पूरा इंफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया. सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, सी और एच अलग अलग एरिया के हैं, सी और एच अलग अलग एरिया के हैं, सी अलग अलग एरिया है, या तो वो लॉजिस्टिक हो सकता है ना, और मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 ही बचा इनका, ये सुनो, है ना. अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के 2 है, सी और एच में से कोई बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना. मैं अगर इसको थोड़ा कलर कर दूं यहाँ पे, सो वी नो, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, वी नो दैट ये मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सी का और एच का, इन दोनों में से कोई एक आएगा. दैट टेल्स अस कि मैन्युफैक्चरिंग का 2 तो भर जाएगा, ठीक है, तो ये पक्का है कि ई इज नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, जी इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, सो देयरफॉर ई इज फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, जी इज वी डोंट नो फ्रॉम वेयर, ठीक है, पर यहाँ पे हमें चाहिए थे 2 टिक, तो ये ऑटोमेशन से होगा 2 टिक करने के लिए, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर अवेयर एंड दिस इज कंफर्टेबल फॉर अस, ठीक है.
Great. So if G is from automation, he will not be from China or Japan. So G will be from India. ये पक्का है, ये सर नो, ठीक है, ये पक्का हो जाएगा. अगर ये पक्का हो जाएगा तो H कहाँ से होगा? H होगा आपका जापान से, H होगा आपका जापान से, ठीक है, विच इज़ प्रिटी गुड. जापान के 2 हो चुके हैं तो ये हम उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है. तो ये पहला बंदा ये हो जाएगा आपका इंडिया से, ठीक है, ये आपका पक्का बैठ गया, ठीक है. अब दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर, ठीक है. और सी और ई के 2-2 है ना, और दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है ना. चलो बढ़िया. सो इफ आई पुट कंसेक्यूटिव फॉर ई का 2 कंसेक्यूटिव करता हूं मैं, है ना, एक यहां पे और यहां पे कंसेक्यूटिव करता हूं, ठीक है. तो 1 2 3 4 5 बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 बैठ जाएगा, ठीक है. ओके, तो फिर सी को यहाँ पे नहीं कर पाएगा और सी के 2 नहीं हो पाएंगे, विच मीन्स आई कांट पुट. अब बिल्कुल क्रिटिकल फैक्टर है, बिल्कुल ध्यान देना. अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आया, सी और ई में से आपका कंसेक्यूटिव कौन है? ये देखिए, ई के पेपर कंसेक्यूटिव है ना, ई के पेपर कंसेक्यूटिव है. सो इफ आई पुट ई के पेपर ऑन जनवरी और अप्रैल, अगर ये 2 कंसेक्यूटिव करता हूं तो आप देखिए जनवरी और अप्रैल का 5 खत्म हो जाएगा, ये सुनो, और बाद में मुझे सी के 2 करने पड़ेंगे तो सी के 2 कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, जो विच विल नॉट बी ओके. सही बात है, दैट विल नॉट बी ओके, ठीक है. तो सी कंसेक्यूटिव है नहीं, बराबर है, सी कंसेक्यूटिव है नहीं, तो कंसेक्यूटिव कहां बनेगा? ओके, सो ई का कंसेक्यूटिव फर्स्ट और सेकेंड में बनेगा नहीं. ई का कंसेक्यूटिव इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं अप्रैल और जुलाई में लगा दूं और सी को मैं जनवरी और अक्टूबर में लगा दूं, तो ये 1 2 3 4 हो गया, पॉसिबल है. 1 2 3 4 5 हो गया, ये बिल्कुल पॉसिबल है. दिस इज आई बिलीव द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. क्लियर है? ग्रेट. ओके, दिस इज कंफर्टेबल. नाउ सी और ई में से, सी और एच में से एनीवन हु इज फ्रॉम इंडिया, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का नहीं होगा, ये बंदा जापान का है तो ऑटोमेशन में नहीं होगा, तो एच के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा. सो वी गेट एन आइडिया, सी और एच डिफरेंट है. ओके, ठीक है, नहीं मिला, आई बिलीव दैट इज ओके, है ना, इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. वी कैन डायरेक्टली गो एंड जंप द क्वेश्चन, ठीक है ना. दैट्स बेटर, ठीक है. मतलब एक छोटा सा मुद्दा रह गया है, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में पूछेगा तब आएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर रिटर्न बाय बी सी ई जी? बी 1 लिखेगा, सी 2 लिखेगा, ई 2 लिखेगा और जी 3 लिखेगा. तो 1 2 2 3, 1 2 2 3 आंसर वुड बी सी, ठीक है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पेपर वर रिटर्न बाय इंडियन ऑथर्स? इंडियन ऑथर्स ने कितने पेपर लिखे हैं? इंडियन ऑथर कौन है? ए बी एफ जी, ए बी एफ जी. ओके, कौन कौन है भैया? ए के कितने? 3, बी का 1, है ना, और कौन है इंडियन ऑथर? एफ और जी. एफ ने कितना लिखा? 1, और जी ने कितना लिखा? 3. एफ ने 1, जी ने 3, तो 3 + 3 6 + 2 8. सो टोटल नंबर्स आर 8. क्लियर है? इजी इजी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? एवरी इश्यू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री. ओके, चलिए देखते हैं, ठीक है. जैसे जनवरी में एक इंडिया का ऑथर है, एक चाइना का ऑथर है, जापान का ऑथर है, बिल्कुल सही बात है. अप्रैल में एक इंडियन ऑथर, जापानीज ऑथर, चाइनीज ऑथर, सही बात है. इंडियन, चाइनीज, जापानीज, बिल्कुल सही है. अक्टूबर में इंडियन, नहीं सॉरी, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, बिल्कुल सही है. मतलब ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. ग्रेट.
एटलीस्ट वन पेपर रिटन बाय वन ऑथर फ्रॉम द ईच कंट्री, सही बात है। बी, एवरी इश्यू हैड एट मोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया, हर इश्यू में हर एक एरिया से मैक्सिमम 2 ऑथर है, मैक्सिमम। ओके ठीक है, एरिया वाइज देखना है। चलो ग्रेट। जनवरी में है ना, जनवरी में ए ऑटोमेशन से लिख रहा है, सी किधर लॉजिस्टिक्स से लिखेगा पता नहीं, डी मैन्युफैक्चरिंग से लिखेगा, जी ऑटोमेशन से लिखेगा, सही बात है, इसमें तो बराबर है। ठीक है, एट द मोस्ट 2 से ज़्यादा नहीं है। आई बिलीव दैट शुड वर्क, ओके दैट शुड वर्क, स्टिल आई विल चेक। ओके मेरे मन में तो लग रहा है कि होगा ही, जब मैं ये बना रहा था तो मन तो मतलब असेसमेंट तो होता है ना अपना कि किधर ऐसा होगा, बट एनीवे अप्रैल है, ऑटोमेशन वाला है, बी का है, लॉजिस्टिक वाला है, ठीक है, ये बंदा है ना मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ई वाला बंदा है, लॉजिस्टिक वाला है, तो लॉजिस्टिक 2 हो गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके और अगर इन दोनों में कुछ चेंजेस आया तो ये बंदा लॉजिस्टिक में चला जाएगा, तो लॉजिस्टिक में यहाँ से कितने होंगे, 1 2 और 3 हो सकते हैं। ओ ओ ओ ओ सो दैट मीन्स आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि कहाँ पे कौन होगा, सी किधर होना चाहिए और ई किधर होना चाहिए, वो मुझे पता होना चाहिए, तो जाकर मैं इसका आंसर दे पाऊंगा बी का, यस नो, उसके बगैर मैं दे नहीं पाऊंगा, दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है, एवरी इश्यू एट द मोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम द ईच एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। स्टेटमेंट ये तो पक्का है। ओके अगला देख लेता हूँ, जुलाई में आई हैव ऑटोमेशन, एक ई वाला बंदा है, लॉजिस्टिक में से है, ऑटोमेशन का 2 लोग हो गया, ठीक है, और ये एच, ओके सो दैट इज़ पॉसिबल। सो ये कितने लोग थे, 1 2 3 4, ये कट गया, ठीक है, ये पूरा कट गया। आई हैव टू टॉक अबाउट सी, उसके बगैर मुझे नहीं मिलेगा ना, ठीक है। सी एंड ई आर बोथ चाइनीज फ्रॉम डिफरेंट एरिया, हैड सेम नंबर ऑफ पीपल, फर्दर ई हैड शेड्यूल्ड कंसेक्यूटिव फॉर, ओके ओके दे आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, सी को मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं, तो ये लॉजिस्टिक हो जाएगा। एच का लॉजिस्टिक के साथ कोई कनेक्शन है, अच्छा सी और ई भी दोनों डिफरेंट एरिया से, ओ ओ ओ सो आई एम गेटिंग सम क्लू। ई कहाँ से है, ई इज फ्रॉम लॉजिस्टिक, ओ मिल गया, सो दैट मीन्स दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, ये लॉजिस्टिक से नहीं है और ये लॉजिस्टिक से है, तो अब है ना, अब मिल गया अपना आंसर, ठीक है ना, अब अपना आंसर मिल गया। चलो ग्रेट सी और ई और सी और एच, ठीक है, ए मेरा ऑटोमेशन से है, बी लॉजिस्टिक से है, डी मैन्युफैक्चरिंग से है, ई मेरा लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिक में 2 लोग हो गए और ये 3 लोग, मतलब गलत हो गया, एट द मोस्ट 2 पेपर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है ना, ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, एवरी इश्यू हैड एग्जैक्टली 1 पेपर बाय चाइनीज ऑथर, ठीक है, फॉल्स बोला है, हर इश्यू में एक चाइनीज ऑथर तो होगा ही होगा, है ना, एग्जैक्टली 1 पेपर, और एग्जैक्टली बोला है, एटलीस्ट भी नहीं बोला है, एग्जैक्टली 1 पेपर। जनवरी में चाइना का एक बंदा, बिल्कुल सही है, अप्रैल में चाइना का एक बंदा, सही बात है, जुलाई में चाइना का एक बंदा, बिल्कुल सही बात है, अक्टूबर में चाइना का एक बंदा, सही है, सो दिस इज राइट, ये फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट राइट है। एवरी इश्यू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ऑटोमेशन से एटलीस्ट 1 पेपर, एटलीस्ट का मतलब अब 1 से ज़्यादा हो सकता है, दैट इज ओके, ठीक है। ऑटोमेशन है भैया जनवरी में, हाँ है, अप्रैल में है, हाँ है, ठीक है, जुलाई में है, हाँ है, अक्टूबर में है क्या, एटलीस्ट 1 बोला तो 1 ही हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, यस नो, अक्टूबर में ऑटोमेशन, यस, सो आई हैव जी अवेलेबल, विच इज राइट, सो ये स्टेटमेंट भी सही है, ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। एवरी इश्यू हैड एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया,
लॉजिस्टिक से हर एक इश्यू में 2-2 पेपर, एग्जैक्टली 2-2. ओके, लॉजिस्टिक के 2-2 पेपर. सी का नहीं, ठीक है, नहीं, पहली बार में ही गलत हो गया. ये नो, तो ये स्टेटमेंट पक्का गलत है. ठीक है. ओके, एवरी इश्यूड एग्जैक्टली 2 पेपर फ्रॉम इंडियन ऑथर, ये मेरे हिसाब से राइट ही हो जाएगा. सो देयरफॉर आंसर हो जाएगा आपका सी. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देयर इज एग्जैक्टली 1 पेपर बाय एन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया इन अक्टूबर इश्यू. अक्टूबर में लॉजिस्टिक से एक ही बंदा है. अक्टूबर लॉजिस्टिक, अक्टूबर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक. Yes, the statement is right. So this statement is right. हमें false ढूंढना है. There was exactly 1 paper by author from manufacturing in April. Manufacturing April. Okay? April में manufacturing 1 परफेक्ट है, राइट है. ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ना कैसे देख रहा हूं मैं, ये देखिए, हाउ एम आई डूइंग इट. ठीक है, मैं इसको कंपेयर करके चल रहा हूँ. देखो, आई एम लुकिंग एट अप्रैल, ठीक है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग. सो दोनों में टिक टिक साथ में होना चाहिए, है ना. अब आप देखिए मेरे पास टिक कहाँ साथ में है ना, अप्रैल और मैन्युफैक्चरिंग, ये एक टिक है और किधर भी नहीं है ना. दैट्स इट, दैट्स हाउ आई विल सी. आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए. सो ये स्टेटमेंट भी सही है. देयर आर एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन जुलाई. एग्जैक्टली 2 पेपर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन जुलाई. जुलाई में 2 मैन्युफैक्चरिंग, गलत. इनफैक्ट एक भी नहीं है, इनफैक्ट एक भी नहीं है. ठीक है, सो पक्का मेरा आंसर है भाई सी. ओके, एंड देन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर बाय ऑथर्स, ठीक है, फ्रॉम ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक एरिया रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नंबर ऑफ पेपर इन ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक. ठीक है, ओके. ऑटोमेशन में कितने लोग हैं? नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा? पेपर, 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 सॉरी, मुझे याद आया. ऑटोमेशन में ये एक बंदा है, उसने कितने पेपर लिखे? 3. ये दूसरा बंदा है, उसने लिखा 1 पेपर. टोटल 4 पेपर फॉर ऑटोमेशन. ये सुनो, ऑटोमेशन के 4 पेपर. मैन्युफैक्चरिंग के कितने पेपर हैं? ये बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग में 1 पेपर लिखा है, इस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग में 3 पेपर लिखे हैं. नहीं, इस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग में 2 पेपर लिखे हैं. इसने मैन्युफैक्चरिंग में कितने पेपर लिखे हैं? 3 पेपर लिखे हैं. 3 + 2 5, मैन्युफैक्चरिंग है 5. ठीक है, और लॉजिस्टिक में कितने पेपर होंगे? लॉजिस्टिक में 4 लोग हैं. एक बंदे ने 1 लिखा है, इस बंदे ने टोटल 2 पेपर लिखे हैं, इस बंदे ने 1 पेपर लिखा है, इसने 3 पेपर लिखे हैं. 3, 4, 6, 7. लॉजिस्टिक में 7. ठीक है, ऑटोमेशन 4, मैन्युफैक्चरिंग 5, लॉजिस्टिक 7. ओके, ठीक है, तो ये हो गया 4, 5, 7. क्या बात हो रही है ना. हमने गलत से देखा. ऑटोमेशन में 4 है कि ऑटोमेशन में ज़्यादा है? ठीक है, लेट्स सी. ऑटोमेशन, ये बंदे ने कितने लिखे? 3. ये बंदे ने कितने लिखे? ओ, इसने भी 3 लिखे हैं. सॉरी, मैंने गलती कर दी है. 3, तो 3 + 3 6 है. ठीक है, तो ये है बंदा 6. ओके, 6, 5, 7. आंसर वुड बी ए. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, ग्रेट. चलिए, बहुत अच्छी बात है. आई बिलीव दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. द अप्रोच इज क्लियर टू यू. मेथड समझ में आई, मैं कैसे कर रहा हूँ. आई बिलीव दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज. ओके, डोंट मिस आउट to like this video, subscribe our channel, and don't miss out to be part of protalentdigital.com. Okay, thank you. Have a good day.